Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Diksha, and today we are going to talk about guidance and counseling. So, if you are having any type of exam where the guidance and counseling is one of the topic of your exam, then you can stick to this video. So, introduction, guidance and counseling. Human is a social being and in their entire life they used to seek help and guidance from others. So जैसा कि हमें पता है ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग एंड हम सोसाइटी में रहते हैं. सोसाइटी में काफ़ी लोग होते हैं जहाँ से हम अगर हम इन एक्सपीरियंस हैं किसी भी फील्ड में, सो they will take guidance from others who has been in experience related to that field. The concept of guidance is as old as himself. सो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो जब हमारे सिविलाइजेशंस के जितना ही ओल्ड है, ये कोई कॉन्सेप्ट न्यू नहीं हुआ है जो हमारी सोसाइटी में अचानक से आ गया और हमें इसे पढ़ने को बोल दिया गया. दिस कॉन्सेप्ट हैज़ गेन अ ग्लोबल स्टेटस इन द प्रेजेंट टाइम. बट जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट फील्ड में बढ़ती जा रही है, उसी तरह हम इसीलिए हम उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं ग्लोबली. सो गाइडेंस एक सब्जेक्ट भी बन गया है बीएड के अकॉर्डिंग. इन गाइडेंस इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. एवरी इंडिविजुअल need various field of need guidance in various field of life on economic problems, social and political problems because of world complexities. As we are as we knew that just because of the complexities of the world, because of science and technology, we used to seek guidance from one another so that we can excel in our own field. So गाइडेंस की हमें अपनी लाइफ में क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिन पे दिन इन एक्सपेंड होता जा रहा है और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है कि जो कि मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग डेवलप होती जा रही है. सो इसीलिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है जिसे उस पर्सन से जिसे उस फील्ड की भी नॉलेज हो. लाइक अभी एआई आ रहा है, एआई टूल के बारे में सबको इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, सीएस स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उन्हें अच्छे से पता है कि एआई क्या है. सो उनसे हम गाइडेंस सीख रहे हैं. नेक्स्ट इज गाइडेंस इन काउंसलिंग. Guidance and counseling is oriented to help student understand themselves, become self-sufficient in making realistic and positive selections, and grow in human relationship and concern. So the orientation of guidance and counseling is because of the fact that to help students so that we can make them understand what is good for them and what is not, so that they can make a conclusion out of those guidance and counseling lessons to make positive and realistic decisions in their life, so that they can grow in human relationship and concern. उससे कि ह्यूमन रिलेशनशिप वो बिल्डअप कर सकते हैं और जो भी उस सोसाइटी की पर्पस जो नीड है उसे उस पर खरा उतर सकते हैं. गाइडेंस इन सिंपल टर्म्स means to direct or provide assistance to someone who needs help or to show the path. So guidance in simple terms means to show or direct or to give assistance to someone who needs help in their life, while counseling refers to the professional services provided to an individual who is facing a problem and needs help to overcome the problem. So guidance एक असिस्टेंट है जो किसी को भी दी जा सकती है, बट काउंसलिंग हम जब किसी को देते हैं वो एक मेंटल और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर सकता है. और गाइडेंस जो है वो किसी भी पर्सन की तरह दे सकता है, बट काउंसलिंग एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो एक प्रोफेशनल ही दे सकता है. काउंसलिंग इज कंसीडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस. सो whenever we are asked about the relationship between counseling and guidance, we can say that counseling is one of the integral part of guidance. Guidance, father of guidance is Frank Person. So father of guidance कौन है? Frank Person. Literal meaning of guidance is to guide, indicate and to show the path. It means to assist and its aim is
to self-direction, self-reliance, and self-improvement. So the literal meaning of guidance is to guide, that is, guide means to indicate or to show the path someone who is needed that help. It means more than assistance. Assistance means help. Guidance is necessarily not means to help. It means more than that सपोज एक जैसे कि हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने बचाया उसे, तो वो एक गाइडेंस नहीं है, वो एक हेल्प है. बट गाइडेंस वहाँ पे ऐसे होती है जैसे कि सपोज एक टीचर है और एक स्टूडेंट है. अब स्टूडेंट को ऐसा क्लास रूम में नहीं समझ में आ रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बट आफ्टर द क्लास रूम जब टीचर बच्चे को मिलता है तो वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है, तो टीचर समझ जाता है उसे कैसे गाइड करना. तो टीचर उसे कुछ अलग टेक्निक बताती है सो दैट ही कैन यूज़ दैट टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द टीचर. तो वो उस टेक्निक को बताता है और उस फील्ड में कैसा वो अच्छा कर सकता है, तो इसे गाइडेंस बोलते हैं. Guidance. The need of guidance and counseling can be stated in simple terms to. So this is something we have already covered, that need of guidance and counseling is majorly because of assistance and helping others so that they can adjust in their personal, emotional and educational environment. Next is guidance as a process helps an individual to make the right decisions and use opportunities in various aspects of the life so that a balance can be facilitated. So guidance हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को राइट डिसीजंस लेने पे, वाइज चॉइसेस परस्यू करने के लिए एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए सो दैट देयर डेवलपमेंट कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू आउट देयर लाइफ. नेक्स्ट इज गाइडेंस. सो यहाँ पर हम गाइडेंस को मेजरली पढ़ेंगे, काउंसलिंग को बाद में कवर करेंगे. So guidance is, it is the help or assistance rendered through a more skilled person to a much less skilled person to solve various kind of the problems like instructional, vocational, personal and so forth. So guidance is majorly the help or the assistant जो कि एक more skilled person देता है less skilled person को to resolve their problems, and these problems can be instructional, vocational, personal, social and economical and many more. Guidance is an umbrella term which include counseling services, appraisal services, information services, referral services, research and evaluation services, all of which an assistant and individual to grow in self-understanding and accordingly in creating wise decisions for greatest adjustment. सो गाइडेंस एक ब्रॉडर टर्म है जो मेजरली सारी तरीके की सर्विसेज को इंक्लूड करता है, लाइक काउंसलिंग सर्विसेज, अप्रेजल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, रिसर्च एंड एवोल्यूशन सर्विसेज, so that individual can grow in self understanding and self direction so that he can create or take wise decisions his life for the greater or better adjustment his life. Guidance is not focused on the problem but on the individual because its purpose is to promote the growth of the individual towards self development. So guidance is majorly guidance focus on the problem, not on that individual who is seeking the गाइडेंस. सो गाइडेंस हम मेजरली फोकस करता है प्रॉब्लम के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर, बिकॉज इसका इंटेंशन होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल. Guidance aims at self-understanding, self-appraisal and self-direction. So the main aim of guidance is self-understanding, self-appraisal and self-direction. Guidance is the thing that creates self-understanding and self-appraisal and self-directiveness in the individual who is seeking the guidance. Some definitions of guidance. Here we are going to discuss some of the definitions that has been given by some of the philosophers, because these definitions can be better adjustment for your answer. If you are a B.Ed student, then you can add these type of definitions in your answer. So first one is Crow and Crow. According to Crow and Crow, guidance is an assistant made available by competent counselor to an individual of any group to help him his
direct his own life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own version. So Crow and Crow कहते हैं कि गाइडेंस वो असिस्टेंस है जो कि एक कॉम्पिटेंट, जो कि स्किल्ड काउंसलर है, वो एक किसी इंडिविजुअल किसी भी एज ग्रुप का हो उसे दे सकता है, सो दैट उसमें एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने की एबिलिटी आए और जिससे कि वो अपने बेटर डिसीजंस और अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है. Guidance is an assistance given to the individual in making intelligent choices and adjustment. According to A.J. Jones, गाइडेंस वो असिस्टेंस है जो इंडिविजुअल को दी जाती है इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट, जिससे कि वो इंटेलिजेंस और वाइजेस्ट चॉइसेस कर सकता है अपनी लाइफ में और बेटर एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में बेटर एडजस्टमेंट कर सकता है. नेक्स्ट इज According to Brewer, guidance is a process through which an individual is able to solve his problems and pursue a path suited to his abilities and aspirations. So Brewer ने कहा है कि guidance वो process है जिसके द्वारा इंडिविजुअल कैपेबल होता है अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए और एक पाथ परस्यू करने के लिए जो कि उसे उसकी एबिलिटीज़ और एस्पायरेशंस को compete कर और मतलब उसकी एबिलिटीज़ के compatible हो. Next is Ruth Strange. Ruth Strange explained that guidance is a process of helping every individual through his own effort and develop his potentialities and for his personal happiness and social usefulness. So Ruth Strange जिन्होंने एक्सप्लेन किया है गाइडेंस को, प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को, जो कि इंडिविजुअल को खुद ही उसके एफर्ट से हेल्प करता है सो दैट ही कैन डिस्कवर और डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज़ फॉर हिज ओन पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन, guidance involves the difficult art of helping boys and girls to plan their future wisely in the full light of all the factors that can be mastered about themselves and about the world in which they are to live and work. So according to the Indian Education Commission, guidance is वो आर्ट है, डिफ़िकल्ट आर्ट है जिससे हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की मदद करते हैं सो दैट दे कैन क्रिएट बेटर फ्यूचर वाइजली in under the guidance, and they can master themselves about what are the problems they are creating in pursuing any kind of career, and about also the world they in which they used to live and work. Some of the definitions. Next is Traxler. What Traxler said about guidance: guidance is a process of enabling each individual to understand his abilities and interests, to develop them as well as possible, and to relate them to ripe goals, and finally to reach a state of complete and matured guidance as a desirable human element of the social order. So according to Traxler, guidance वो process है जहाँ जो हम इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करता है, ऑल्सो सो दैट ही कैन रिलेट टू द जो भी उसके गोल्स हैं उससे रिलेट कर पाता है और उसे एक ऐसे स्टेज में पहुंचाता है जो वहाँ पे वो मैच्योरली बिहेव कर सके और एक कंप्लीट मैन की तरह फील कर सकते हैं, जो कि फिट हो सके एक सोशल बेटर ऑर्डर में. नेक्स्ट इज नीड ऑफ गाइडेंस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट गाइडेंस, अब तक तो हमें समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस की क्या क्या नीड और इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. गाइडेंस हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है मेजरली, जहाँ पे हमारी मम्मी ही हमें सिखाती है कि कैसे क्या करना है बचपन में. देन फैमिली प्रोवाइड्स अस गाइडेंस, आफ्टर दैट स्कूल. सो ये कंटिन्यूटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम तक हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ में रहती है. सो आइए देखते हैं फर्स्ट नीड क्या है. सो फर्स्ट इज़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सो गाइडेंस की जो नीड है वो हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, इन्फेंसी में भी हमें चाहिए है गाइडेंस अपनी मॉम से. देन आफ्टर दैट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस के पीरियड में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती हैं, उस करते हैं हम जिसमें हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो एक बेटर डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस अमॉन्ग पर्सनस. सो जैसा कि हमें पता है कि सारे लोग एक इंडिविजुअलिटी ही रखते हैं और जो कि उन्हें यूनिक बनाती है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूनिकनेस किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसी को नहीं होती है, क्योंकि सारे बच्चे और सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं. थर्ड वन इज़ एजुकेशनल ग्रोथ. सो द मोस्ट यूजफुल पॉइंट इज़ द यूजेस ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो गाइडेंस हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गाइडेंस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. अब ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में गाइडेंस सीख कर रहे हो इन एजुकेशन के। हम स्ट्रीम डिसाइड कर सकते हैं। हम इंक्लूसिव एजुकेशन में गाइडेंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर हम बच्चे विभिन्न तरीके की डिसेबिलिटीज़ फेस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और बेटर करियर चूज़ करने में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि जहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड्स करियर चॉइसेस। अब हमें जब चाइल्ड की करियर चॉइसेस में, जैसे कि हम अभी 12th पास आउट हैं, अब हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो हम इससे रिलेटेड गाइडेंस ही कर सकते हैं जो कि हमसे बड़े हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने जो हमें बता सकते हैं कि हम अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कौन से हमारा करियर हमारे लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ फॉर एडजस्टमेंट एट स्कूल एंड home. So sometimes we used to face majorly difficulties for adjusting in a new environment like home or school. जैसे कि हमने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया है और वहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम उतने कंपेटेबल नहीं हैं कि हम नए स्कूल में एकदम से एडजस्ट कर पाएँ। तो उस जगह हमें टीचर्स एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें एक सलाह दे सकते हैं कि ये अगर हम ये करेंगे और तो हम बेटर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स बना सकते हैं, हम टीचर से बात कर सकते हैं कि हमें कहाँ डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है। सो उस वे में भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। Next is society development, existing problems like poverty, unemployment, corruption. So majorly the need of guidance can be needed in society development. अब हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं लाइक पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड मैनी मोर। सो एक बेटर सोसाइटी के लिए हमें इन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करना होगा so that a better environment can be created. So next one is एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी मेजरली गाइडेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज इनके अंदर काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिससे वो एक प्रॉपर क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और मेजरली इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है और इन्हें बेटर एजुकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जिससे कि वो बेटर परफॉर्म कर पाएँ इन देयर क्लासरूम्स। लास्ट इज़ फॉर सेविंग द अर्थ। अब मैंने ये इंक्लूड भी किया कि गाइडेंस बिकॉज अर्थ अभी हमें पता ही टेम्परेचर राइज हो रहा है और कितनी हमें ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट की बिकॉज हमें इन्वायरमेंट से ही हम हैं और इन्वायरमेंट को ही हम गंदा कर रहे हैं। सो मेजरली वी नीड टू सेव द अर्थ आर प्लानट। सो इसमें भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज अगर हमें फैमिली, टीचर्स और बहुत सारे प्रेस मीडिया हमें अगर सजेस्ट करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ द वेज फॉर सेविंग द अर्थ, देन वी कैन डेफिनेटली अवॉइड दैट ग्लोबल वार्मिंग लाइक acid rain situations and pollution and many more problems. Next one is the summary. So here we will conclude all the thing that we have already covered. So the in introduction we have read that कि गाइडेंस की origin हमारे civilization के टाइम ही हो गई थी और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। गाइडेंस की इमरजेंस ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत पहले से ही आ रही है बट अभी ये मल्टी डायमेंशनल हो चुका है और जो हमें ज़्यादातर फील्ड में देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसकी मेजरली बात कर रहे हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हमने डिस्कस किया था कि गाइडेंस किसी भी तरह के एक्सपीरियंस इंसान के द्वारा दी जा सकती है बट काउंसलिंग एक प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग है जो एक प्रोफेशनल ही दे सकता है। नेक्स्ट इज़ एवरीथिंग अबाउट गाइडेंस। इसमें हमने गाइडेंस के बारे में पढ़ा कि गाइडेंस वो असिस्टेंस है जिसके द्वारा हम लोगों की मदद करते हैं सो दैट ही कैन टेक बेटर डिसीजंस इन हिज लाइफ। फिर हमने उसके बाद डेफिनेशंस को पढ़ा जो कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स ने दी थी। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आर गाइडेंस। सो देन उसके बाद हमने नीड और गाइडेंस की इम्पॉर्टेंस पढ़ी। सो दैट्स इट फॉर योर today's video. Thank you so much and please do not forget to like and share and subscribe. Thank you so much.